हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। मैं हूं रुचिका और मैं हूं नीरज। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि है आईआईटी गुवाहाटी कैंपस की। तो आज हम बेसिकली कैंपस टूर लेंगे वर्चुअली। इस कैंपस से हमारी बहुत ज़्यादा ही जुड़ी हुई हैं। हम पहली बार मिले यहीं पे थे और हम दोनों ने यहीं से स्टडी करी है। तो आई थिंक हम वर्चुअली अभी इस कैंपस को दोबारा रिविजिट करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि हम आईआईटी गुवाहाटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। हमने आई थिंक सारी बिल्डिंग्स देखी होंगी आईआईटी गुवाहाटी की, और अगर कुछ नया कंस्ट्रक्ट हो गया होगा तो वो हमें इस वीडियो में शायद देखने को मिले। तो हम वीडियो के दौरान बोलेंगे नहीं और एंजॉय करेंगे वीडियो को। वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि हम कौन सी प्लेसेस जो हैं वो हमने नहीं देखी थी या जो नहीं है, और जो हमने देखी हैं वो उनकी स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे कि हम वहाँ पे क्या क्या करने जाते थे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। Where am I? Is this reality or just an illusion? These questions have haunted us since the beginning of humanity. But can I be the one to put it all together? For that, I must first reduce my own nature. Am I a particle or a wave? So many questions, so little time. I think college life is a lot of things. This is the time when you actually grow up. I think entrance security guard जहाँ बैठता है वो जगह है वो। And irks of adult life. And what better place for this than a picturesque institution set in the foothills of Assam? Welcome to IIT Guwahati. Oh yeah. The campus, established in 1994, beautifully represents the splendor of nature that manifests in northeastern India and is sure to have a soothing, calming effect on anyone who visits. Besides vast stretches of pristine greenery, there are 3 inland lakes that we take pride in. One of them is the well-known Lake Serpentine. The students also love visiting the viewpoint, which provides an amazing overview of the whole campus. This is the academic lake, called so because from here you can see the big 3 of the academic complex, namely the library, the administrative block and the auditorium. Also called the selfie lake, this is where you'll probably take your first selfie of the campus. Now, let's get to what the parents want to know, the lecture halls. सबसे पहले मैं यही गया था जब मैं आईआईटी गुवाहाटी में गया। ओरिएंटेशन यहीं पे होती है ना यूजुअली। There's a station going on there. So, this is the place where you probably walk in wearing something like that on the first day. But after a week or so, well. The lecture hall complex consists of 4 lecture halls, each with a seating capacity of over 200 students. This is the place where all the lectures for the first year are यहाँ मैंने एग्जाम दिए भी हैं, मैंने भी दिए हैं। एग्जाम लिए भी हैं। We are now standing in front of the administrative building. This is where यहाँ all पे the मैंने बहुत boring फोटोज stuff खिंचवाई happens. हैं। Standing in line, submitting forms, filing complaints, and of course, registrations. This is where we can find the Dean of Student Affairs, the Dean of Academic Affairs, the Dean of Alumni Affairs, the JE office, and much more. This is the academic complex. It houses the departments, labs, and classrooms. It's divided into 4 cores. A common sight here will be drowsy students having a cup of coffee right after the 8 a.m. class. Welcome to the Lakshmanath Besbarua Central Library. You may be here with intention to study, but might find yourself drifting off to sleep due to comfortable couches and the centralized लाइब्रेरी के बाहर CCDA कैफे कॉफी डे। Right opposite to it, we have the Computer and Communication Center, popularly known as the CC. With 300 plus computers, you'll find that the CC meets all your needs. Whether it be reading up lecture notes, or watching cat videos with speeds up to 50 Mbps, or general purpose computation on high performance clusters or just that sitting can in the store up to 6 terabytes. And in case you need more computational power, IITG houses Param Ishan Supercomputing Facility,
the fastest and most powerful computer in northeastern, eastern and southern regions with a speed of 250 teraflops per second and 300 terabytes of storage. The Bhupen Hazarika Auditorium hosts the biggest, splashiest events of the campus. On your very first day, in here you'll have the orientation, and 4 years later, hopefully, it is at this very place that you will receive your degrees. Keynote lectures, musical performances, theatre, movie screenings. This place is going to be at the heart of your co-curricular life here. So this was all about academics. CCD library. क्या बहुत टाइम स्पेंड किया हमने. Outlets like Cafe Coffee Day, Subway, Baskin Robbins and many more inside our very own food court along with a functional 24-hour canteen. ये सही बोला. CCD लाइब्रेरी में ये अलग है. ये SAC है. Student Activity Center, also called SAC, is true to its name. Most of the institute's club activities are done here and is the ultimate chilling spot for the students. यहाँ बैठे रहते थे. For a quiet place to do assignments. This is the sports complex, equipped with some of the best sports facilities. Sports is an integral part of campus life. The students of IIT are very enthusiastic about sports, whether it be for staying fit or training hard throughout the year to bring glory in the inter-IIT sports meet. Study, play and relax is the mantra we like to follow. So come, dive into the coolness. So on a boring evening, you can either play sports or kick back with a cup of tea. Technically, Khoka isn't in campus, but it's an integral part of both students and professors' life alike. Khoka. You can come here for anything, be it cycle repairing or even a hot plate of samosas with chai. We also have the market complex in case you want to buy groceries, get your suit dry cleaned or enjoy a fine dine with friends. So be it food or buying stuff, our campus has it all. But in case you still want to go to the city, we have buses to and from the city every hour. इसी बस में मैं पहली बार आया. मैं भी आई थी इसी बस में पहले. हो रह गया. And even if you miss the bus, you do not need to worry because we have ferries leaving from the ferry ghat every 15 minutes. I used to go there. The majestic Brahmaputra river flows right next to the campus, and there are very few things as satisfying as watching the sunset over the river. The ferries are operated by the Inland Water Transport. 8 बजे last ferry को आती थी वो बड़ी वाली वो लेके आते थे वापस का. And if you are lucky enough, you might see the rare river dolphins on your way. I never got a chance to see that. Wondering what life is like on campus in general? Well, it's sure not just academics. Technique. Around the year, you'll find yourself immersed in an array of events. If you love all things technical, the annual Techno Management Fest Techniche is your thing. If music, art and dance is where your soul lies, you love the thrill of Alcharinga, the second largest cultural fest of India. Also, I think we like to celebrate every festival, be it Diwali, Holi or anything else, with equal fervor. In any case, no matter who you are, there is a lot in store for you. तो फिर कैसी रही वीडियो रुचिका? वीडियो बहुत अच्छी थी. जहाँ जहाँ वो जा रहे थे मुझे याद आ रहा था मैंने क्या किया वहाँ पे. और जब इन्होंने स्टार्टिंग में वो दिखाया था कि दिस इज द प्लेस वेयर यू गेट योर फर्स्ट सेल्फी, उसके पीछे मैं जब साइकिल मेरा चोरी हो गया था वहाँ पे तो मैं रिपोर्ट लिखवाने गई थी. हाँ, वो एडमिन बिल्डिंग में सिक्योरिटी ऑफिस है तो वहाँ पे पहली चीज हम साइकिल पे घूमते थे कैंपस के अंदर, तो इन्होंने बहुत सी चीजें नहीं दिखाई. हॉस्टल, मेरा हॉस्टल था, मेरा भी हॉस्टल नहीं दिखाया इन्होंने. मेरा हॉस्टल था ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल. और तुम्हारा कौन सा था? सुबनसिरी. लड़कियों के 2 ही हॉस्टल थे आई थिंक, सुबनसिरी और धनसिरी. लड़कों के काफी. जब मैं गई थी तब धनसिरी बना था तो बट आई गॉट सुबनसिरी. और सुबनसिरी में सिंगल रूम मिलता है लड़कियों को और धनसिरी में शेयरिंग था, तो आई वाज ग्लैड कि मुझे सिंगल रूम मिल गया था. लड़कों का मोस्टली सभी सिंगल ही मिलता था. और लड़कों के काफी हॉस्टल हैं, बराक हॉस्टल, धनसिरी हॉस्टल, बराक हॉस्टल, ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल,
बाकी मुझे मानस, एक मानस था और वो एक हाँ टेढ़ी सी बिल्डिंग वाला, मुझे नाम भूल गया उसका। तो लेकिन काफी हॉस्टल है, आई थिंक 6-7 हॉस्टल तो हैं। गर्ल्स कम है शायद बॉयज से, तो इसीलिए 2 ही हॉस्टल हैं गर्ल्स के लिए। तो हम वहां से अपनी साइकिल पे जाते थे, एडमिन बिल्डिंग जाना हो या कोर 2 में जाना हो। कोर 2 में एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो हम वहां जाते थे। और साइकिल बाहर जो उन्होंने दिखाया वो जहाँ से एकेडमिक कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे जो ड्रोन शॉट था उसके आगे साइकिल पार्क करने की जगह है, तो वहाँ वहीं से ही मेरा साइकिल एक्चुअली चोरी हुआ था और फिर बाद में मुझे मिल गया था। हाँ, तो वहां से हम जाते थे, बड़ा मजा करते थे। और जो खोखा दिखाया था उन्होंने, वहां से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। वहां पे हम भुट्टा खाने जाते थे, रोज शाम को जाते थे काम करके लैब में से, जो शाम की ब्रेक होती थी वो, तो वहां पे हम खाना खाने जाते थे। बहुत सी चीजें इन्होंने नहीं दिखाई। एक तो हॉस्टल्स नहीं दिखाए, दूसरा इन्होंने वो नहीं दिखाया जो केवी गेट नहीं दिखाया। नहीं केवी गेट के बाहर नहीं, हाँ केवी गेट के बाहर नहीं दिखाया। वही मैं बोल रहा था कि वहाँ पकौड़े की शॉप है, 2-3 पकौड़ों की शॉप्स है वहाँ पे। चाय फैकल्टी भी शाम को वहाँ पे जाके चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं। और वो एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा के बिल्कुल पास में है, वहां से ब्रह्मपुत्रा का व्यू दिखता है। खोखा मार्केट जो है वो वहाँ पे पूरा रास्ता है और साइड पे शॉप्स हैं, और उस तरफ भी आगे आई थिंक कोई स्कूल है या कुछ है, जिसकी वजह से वो ब्रह्मपुत्रा नजर नहीं आती। लेकिन जो केवी गेट है वहां से बिल्कुल सामने ब्रह्मपुत्रा नजर आती है। वहां से पैदल जाके आप ब्रह्मपुत्रा के जो किनारा है वहां पे बैठ के भी अपना चाय नाश्ता जो कर सकते हैं। और केवी स्कूल भी आता है वहीं पे, तो वो भी इन्होंने नहीं दिखाया। वो IIT गुवाहाटी के अंदर ही है, कैंपस के अंदर है केवी स्कूल, वो नहीं दिखाया इन्होंने। और एक और फीचर नहीं दिखाया, वो है गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस के पास की जगह बहुत ही सुंदर है। जो सर्पेंटाइन लेक इन्होंने दिखाई है वो ऐसे एक्चुअली गेस्ट हाउस आगे है, और उसके पीछे है सर्पेंटाइन लेक, और फिर है फैकल्टी क्वार्टर्स। और वो और गेस्ट हाउस बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। गेस्ट हाउस में मेरे जो पेरेंट्स आए थे तो मैं देखा रूम बहुत ही सुंदर, अच्छे से वेल फैसिलिटेटेड है, और खाना वगैरह भी आपको वहीं पे ही मिल जाता है, तो काफी अच्छा है। और मुझे तो गेस्ट हाउस के बाहर की जगह भी बहुत अच्छी लगती है। और वो रोड जो है वो वहां पे हम वॉक करने जाते थे, और मेरे हॉस्टल के पास थी वो। हाँ, और आपको अगर आप जाएं तो आपको मोस्टली जो भीड़ भाड़ है शाम के टाइम में लड़कियों के हॉस्टल के बारे में मिलेगी। हाँ, तो हम वो जो वहाँ पे आई थिंक पाम ट्रीज या कोई ट्रीज लगे हुए हैं लंबे लंबे, और वहाँ पे वो बहुत ही सबसे साफ एरिया IIT गुवाहाटी का वही है, गेस्ट हाउस के सामने वाला, और वहाँ पे चलने का बहुत मजा आता है। और उसके बैक एंड पे ही न्यू सैक आ जाता है, तो वहाँ पे भी आप वहां से निकलो। आप अगर IIT गुवाहाटी के गेस्ट हाउस से जा रहे हैं तो पहले आएगा हॉस्पिटल आएगा, पहले हॉस्पिटल आएगा, IIT गुवाहाटी का हॉस्पिटल आएगा, और उसके बाद न्यू सैक की बिल्डिंग आएगी। मैरिड हॉस्टल भी आएगा। हाँ, मैरिड हॉस्टल धनसिरी पहले आएगा, फिर मैरिड स्कॉलर का हॉस्टल आएगा, और फिर न्यू सैक आएगा, एंड और उससे पहले जो सबसे पहले वो हॉस्पिटल आएगा दूसरी तरफ से। एक और नहीं इन्होंने चीज दिखाई, वो उस तरफ वाला इलाका जो बिल्कुल ही दूसरी तरफ है, वहाँ पे मंकीज आते हैं। हाँ, वहाँ पे किड्स स्कूल है, अक्षरा स्कूल है। हाँ, याद आ गया मुझे। वहाँ पे बहुत सारे मंकीज है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है बेचारों का, और वो मंकीज आके उनका खाना बनाने जाते हैं। और मैं बहुत कम गई हूँ उस एरिया में, बट हम कभी कभी गए हैं उधर, तो काफी अच्छा है, काफी बड़ा कैंपस है और बहुत ही सुंदर है। आई थिंक इसको ये भी कहते हैं कि IIT गुवाहाटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस इन इंडिया। यस, एंड वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि वी गॉट अ चांस टू स्टे देयर। स्टडी तो की बट एंजॉय भी बहुत किया, बहुत ही मजा आता है, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। मतलब वहां पे आप फिट रहते हो, इंटेंशनली फिट, अनइंटेंशनली फिट रहते हो, क्योंकि आप साइकिल के ऊपर ही यहाँ A पॉइंट से B पॉइंट पे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बाइक्स वगैरह और कार्स अलाउड नहीं। और एक चीज IIT गुवाहाटी की बहुत अच्छी है कि मतलब वहाँ पे बाइक्स वगैरह आपको अलाउड ही नहीं है, तो यू कांट गेट बाइक्स, एंड मतलब साइकिल वाली बाइक जरूर ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मोटर बाइक्स जो है वो अलाउड नहीं है, और कार्स वगैरह तो स्टूडेंट्स रख ही नहीं सकते अनलेस मैरिड स्टूडेंट्स हो या मैरिड वालों को अलाउड है कि वो गाड़ी वगैरह रख सकते हैं, बट नॉर्मल स्टूडेंट्स को नहीं। सिंगल जो है बेचारे वो अपने साइकिल पे घूमते हैं या चल के घूमो, और मोस्टली वहाँ पे जब भी लोग जाते हैं साइकिल ले ही लेते हैं जाते ही, बिकॉज आपको लेक्चर सुबह सुबह अटेंड करने होते हैं, फिर लंच टाइम में आपको फिर मेस में आके खाना खाना होता है, देन यू हैव टू गो बैक, तो उसमें बहुत टाइम जाता है, तो पैदल आने जाने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो साइकिल में भी 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं, तो सोचिए पैदल बंदा आए तो 20 मिनट तो इसी में चले जाते हैं। और IIT गुवाहाटी की लाइफ जो है वो बहुत हेक्टिक है, बहुत असाइनमेंट्स, बहुत काम करना पड़ता है, और इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते।
तो बहुत काम करना पड़ता है। वो जो अक्षरा वाला रास्ता मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं 1-2 बार वहां से गया हूँ और मुझे डर ही लगता रहता था कि बंदर कोई अटैक ही ना कर दे। मैंने देखा नहीं कभी वहां पे वैसे कोई मंकी, बट मैंने सुना है और मैं गई हूँ 2-3 बार उधर से, थैंकफुली मुझे ऐसा सामना कोई करना पड़ा नहीं। हाँ, और व्यू पॉइंट बहुत अच्छी जगह है। व्यू पॉइंट ऊपर से आप देखेंगे तो गेस्ट हाउस, गर्ल्स हॉस्टल और ये सब। व्यू पॉइंट इन्होंने अच्छे से कैप्चर नहीं किया, स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था। गए ही नहीं व्यू पॉइंट, बस ड्रोन से कैप्चर कर लिया। व्यू पॉइंट पे मैं गई थी बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ और मैंने वहाँ पे पिकनिक की थी। बहुत मतलब जब मैं स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में थी तो बड़ा मजा आया है ना। और एक चीज जो बसेस वाला फीचर है, अब हम चलते हैं गुवाहाटी सिटी में। बहुत मजा किया हमने गुवाहाटी सिटी में। सिनेमा में मूवीज देखने जाते थे, फिर लखनऊ किया, फैंसी बाजार सारा घुमा हुआ है, बड़ा मजा आता था वहाँ पे। और एक जगह है वहाँ पे हमें चाट पापड़ी बहुत अच्छी मिलती थी। हाँ। मतलब मैं भूल नहीं सकती, वो मेरी लाइफ की बेस्ट चाट पापड़ी थी। वो क्या था कि वो फैंसी बाजार को क्रॉस करके हम राइट लेते थे गुरुद्वारे के पास में से। जो गुवाहाटी में रहते हैं उनको पता होगा कि फैंसी बाजार को क्रॉस करते थे, वो चौक पे गुरुद्वारा आता है, गुरुद्वारे के राइट साइड में हम जाते थे। और उस कॉर्नर पे एक मिठाई की दुकान है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मुझे भी नाम नहीं याद, मेरे को बस मिठाई की दुकान है वहाँ पे। और उस कॉर्नर पे वो चाट पापड़ी लगाता था, गोलगप्पे भी बनाता है चाट पापड़ी में। और चाट पापड़ी थोड़ा टाइम लगा के बनाता है वो बंदा, और बहुत प्यार से बनाता है। मतलब और हम लोग, हमारी बस का टाइम हो रहा होता है, कभी कभी हम होता था कि जल्दी जल्दी बना दो, हमें भागना है, तो वो हमें पैक भी करके देते थे कभी कभी। हाँ। तो हम फिर बस में जाके खाते थे, बट मतलब इट वाज टू गुड। उस ऐसी चाट पापड़ी मुझे कहीं नहीं मिली। हाँ, बड़ा मजा आता था गुवाहाटी सिटी में। उस टाइम हमने YouTube चैनल स्टार्ट नहीं किया था, नहीं तो हम उसको रिकॉर्ड करते और कैंपस को भी रिकॉर्ड करते। बट अगर दोबारा गुवाहाटी में जाने का मौका मिला तो आई वुड डेफिनेटली गो देयर और मैं कैप्चर करके लाऊंगी। और हम शॉपिंग करने कहाँ जाते थे? वी मार्ट और पेंटालून्स और क्या था? हाँ, वो एक और था रिलायंस ट्रेंड्स। हाँ, रिलायंस ट्रेंड्स। तो ये 3 स्टोर्स थे जो हमारी। मेरे पास एक कार्ड भी था रिलायंस ट्रेंड्स का, जिसको मैंने कभी यूज नहीं किया। तो हम बस से जाते थे वहाँ पे, वो जगह का नाम भूल रहा हूँ मैं जहाँ पे बस रुकती है IIT गुवाहाटी, वो एक्चुअली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है। तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में वहाँ से उतर के हम पैदल जाते थे। आई थिंक वी मार्ट पहले आता है या कुछ ऐसे, और फिर बस पकड़ के पेंटालून्स जा सकते हैं आप। सिटी बस, लोकल बस। पेंटालून्स पर काफी दूर है, पेंटालून्स काफी दूर है, पेंटालून्स वहां से काफी दूर है और आप बस पकड़ के जा सकते हो। बहुत मजा किया है गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में एक पास में एक पंजाबी रेस्टोरेंट भी था जिसमें हमने एक बार बर्थडे सेलिब्रेशन करी थी। वो बिल्कुल जैसे IIT गुवाहाटी के आप मेन गेट से बाहर निकले, और मेन गेट जो है ना मेन रोड से बहुत दूर है तो वहाँ मेन रोड पे चल के जाएं तो आपको थोड़ा सा और चलना पड़ेगा। पहले तो मेन रोड तक पहुंचिए और फिर आगे जाइए तो आपको एक पंजाबी ढाबा भी मिल जाएगा। हमने वहाँ पे बहुत खाना खाया है, बहुत मजे किए हैं। और वहाँ पे बैम्बू वाली चेयर्स हैं। वो दूसरा है रुचिका, वहाँ पे हमने पार्टी की। और वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन, मैं उसकी बात कर रही थी। हाँ, वो दूसरा है, वो अमृतसरी नहीं है, वो आई थिंक SMS स्टाइल का है, लेकिन वो भी अच्छा था। बहुत मजा आया हमें वहाँ पे भी, और काफी खूब मजे किए हैं। बहुत स्टोरीज हैं, बहुत बसेस मिस की हैं जाते वक्त भी और आते वक्त भी। जाते वक्त मिस हो जाए तो इतना दुख नहीं होता था, क्योंकि हम कैंपस में ही होते थे और वहां बैठ जाते थे, कुछ खा लेते। लेकिन आते वक्त अगर बस मिस हो गई तो फिर क्या करना है? तो और कभी कभी तो हमारी मतलब जहाँ से मेन जगह, कभी कभी हम जब मार्केट में होते थे तो हमें पता लगता था ओ ये तो टाइम निकल गया, तो हम रास्ते से पकड़ते थे कभी कभी। हाँ, जैसे वो लड़का भाग रहा था वैसे ही हम भागते जाते थे और बस को पकड़ने के लिए। तो बहुत मजा आता था। और कभी कभी आपको पहले आ जाओ तो आप वेट करते रहते हैं। तो बैठे रहो फिर, और कोई चारा नहीं है क्योंकि 1 घंटे के बाद अगली बस आएगी। बट ऑटोस वगैरह से आप जा सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी है, जल्दी पहुंचना है। ऑटोस वगैरह से तो वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन IIT गुवाहाटी कैंपस की बस ऑटोस में प्रॉब्लम ये है कि वो पीछे वाले गेट पे अगर छोड़ते हैं आपको, फिर आपको चल के जाना पड़ता है। अगर आपको दूसरी तरफ आना है तो उसके लिए। और बसेस हैं जो वो आपको हॉस्टल के बिल्कुल आगे उतारती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बसेस तो बिल्कुल हॉस्टल के सामने उतार देगी, गर्ल्स हॉस्टल के तो स्पेशली सामने उतार। और एक और चीज जो फेरी दिखाई थी इन्होंने, गुवाहाटी में फेरी में जाने की एक एडवांटेज है कि अगर आपके पास बाइक है या कुछ भी है तो फेरी में उसके लिए भी जगह है अलग से। तो ऊपर आप बाइक रख सकते हैं और नीचे आप बैठ जाएं। बहुत मजा आता है। मैं मतलब हम बाइक लेके भी गए हैं सिटी में, बहुत मजा आया था। बहुत मजा आता है। गुवाहाटी में आप जाएं, कैंपस विजिट करें। गुवाहाटी इटसेल्फ बहुत अच्छा सिटी है, बहुत मजा आया। हमने गुवाहाटी में बहुत एंजॉय किया है। कैंपस में जाके आपको लगेगा कि मतलब ये तो जन्नत में आ गया। कैंपस एक अलग सिटी है, गुवाहाटी अलग सिटी है, कैंपस इटसेल्फ इज डिफरेंट सिटी।
इन इटसेल्फ। और सीसीडी भी है वहाँ पे, जहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉफी सीसीडी की वहीं से ही पी। हाँ। और चौखोला मुझे बहुत पसंद था वहाँ पे। हाँ, सीसीडी बहुत अच्छा फीचर है। और एक चीज जो है, इन्होंने सारे रेस्टोरेंट एक ही साथ दिखा दिए, वो एक्चुअली एक जगह पे नहीं है। सीसीडी एक लाइब्रेरी के सामने है, जो बाकी रेस्टोरेंट्स हैं वो सैक बिल्डिंग में है। जो सबवे वगैरह है वो सैक में है। अब हमारे टाइम पे तो सैक में था, अब चेंज हो गया हमें नहीं मालूम, लेकिन वो सैक में है। और बास्किन रॉबिन्स भी सैक में ही है। हाँ, बास्किन रॉबिन्स भी सैक में है। और उसके बाद एक रेस्टोरेंट जो है वो उसके पास लेक्चर हॉल के बिल्कुल पास में है। एक लेक्चर हॉल नहीं, एकेडमिक कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास में है। आई थिंक अपने कोर 1 और कोर 2 के पास में है वो। और फिर बाकी जो और भी रेस्टोरेंट्स हैं वो मेन गेट वाली जो मार्केट इन्होंने दिखाई है वहाँ उसके पास है। वहाँ पे एक किराना की शॉप है, फिर वेजिटेबल मार्केट है, फ्रेश फ्रूट मार्केट, हेयर कट वगैरह चाहिए तो वो भी वहीं पे मिलेगा। हेयर कट, टेलर, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ पे 1-2 रेस्टोरेंट्स भी हैं। एक ऊपर एक नीचे। हाँ, तो काफी सारी स्पेस है कैंपस के अंदर और बहुत से फीचर्स हैं। बहुत सुंदर कैंपस है। और मतलब आपको हर टाइप की चीज मिल ही जाएगी वहाँ पे। और आगे सरपेंटाइन लेक की कहानी, हम सरपेंटाइन लेक के साइड पे बैठते थे, वहाँ पे बैठने की जगह है। और वहाँ पे गुवाहाटी कैंपस में स्नेक्स भी बहुत हैं। एक पाइथन, बैंडिड क्रेट भी है वहाँ पे, और बहुत डेंजरस स्नेक्स हैं। और हम यहाँ पे जाके बैठ जाते थे। फॉर्चुनेटली हमें किसी ने काटा नहीं। और मैंने देखा है एकेडमिक कॉम्प्लेक्स में भी 1-2 बार स्नेक्स जब जाते हैं तो सब लोग पकड़े हैं। हमारे टाइम पे भी पकड़े थे 1-2 स्नेक्स। तो सरपेंटाइन लेक जो है उसका नाम इसकी वजह से नहीं है कि उसके आसपास स्नेक्स हैं। आई थिंक वो वाइंडिंग रोड उसके पास से ऐसी है कि वो सरपेंटाइन की तरह लगती है। और ब्रह्मपुत्रा के पास भी जो लेक थी, पीछे सुना था कि उसको उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं उसको हटा के, बट आई डोंट नो अभी कुछ नया बन गया कि नहीं वहाँ पे। हाँ, आई डोंट नो दैट। लेकिन कैंपस में हमने बहुत मजे किए हैं। और एक और चीज नहीं दिखाई इन्होंने, मुझे याद आ गया। क्या? वो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की एक अलग से वो फाउंड्री शॉप क्या बोलते हैं उसको, वो दूसरी तरफ है। यस एकेडमिक, जैसे ये एकेडमिक कॉम्प्लेक्स है, इसकी एक तरफ रेस्टोरेंट वगैरह हो जाए और ये पूरा क्रॉस करके दूसरी तरफ वर्कशॉप है, मैकेनिकल वर्कशॉप्स वगैरह। और एक और चीज नहीं दिखाई जो आर्किटेक्चर वालों का, वो बहुत सुंदर था। कोर 1 में था वो शायद। हाँ, वो बिल्डिंग आर्किटेक्चर डिजाइन वालों की, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, डिजाइन या आर्किटेक्चर की डिपार्टमेंट की बिल्डिंग। वहाँ पे उन्होंने आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं बाहर, वो काफी सुंदर लगता है। और बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े होकर फोटोज भी खिंचाते हैं। हाँ, और अल्चरिंगा और टेकफेस्ट की कुछ याद है? बहुत मजे किया है। अल्चरिंगा में मिका आया था और बहुत से मिका तो हमारे टाइम में ही आया था। तो आई थिंक जोनिता गांधी को भी हमने देखा है, जोनिता गांधी। और वो समृति भी तो आई थी। कौन समृति? समृति ईरानी। समृति वो तो मिनिस्टर थी। मतलब हमारे मोदी ने भी। स्मृति तो तुम ऐसे बोल रही है माय फ्रेंड, शी इज ऑनरेबल मिनिस्टर। मैंने कहा ये कौन सी स्मृति की बात है? स्मृति ईरानी इज द मिनिस्टर इन इंडियन गवर्नमेंट। नहीं, उसका उनका पहले ही आता था वो सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ओके, बट एनीवेज बहुत मजे किए हैं, बहुत मजे किए हैं IIT गुवाहाटी में। जैसे आप सुन ही रहे हैं कि हमारी बातें खत्म नहीं होती, लेकिन हमें ये व्लॉग खत्म भी करना है और IIT गुवाहाटी की बातें किसी और दिन करेंगे। और अगर हमें मौका मिला तो हम आपके लिए खुद से जो चीजें रह गई हैं वो कैप्चर करके लाएंगे। अगर हम वापस IIT गुवाहाटी कभी गए तो जरूर कैप्चर करके आए। हमारे पास अभी भी एलुमिनाई कार्ड है। आई थिंक वो हम लाइफ लॉन्ग रखेंगे एलुमिनाई कार्ड और एंजॉय करेंगे, चेरिश करेंगे अपनी मेमोरीज को। गेस्ट हाउस में एक कमरा मिल जाए जब हम जाए, वो तो मिल जाएगा। आई थिंक एलुमिनाई को तो मिल जाएगा। To just email someone or book it online. So hopefully हम IIT गुवाहाटी दोबारा जाएं और आपको कैंपस का टूर हम अपने कैमरे के लेंस से दें, फिजिकली वहाँ पे होके आपको चीजें बताएं। काफी अच्छा लगा मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेमोरीज रिविजिट करके। बहुत मजा आया मुझे। आई वाज टू एक्साइटेड कि मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत चीजें ऐसे ही बोल गई। सोचा नहीं मैंने, बट आई वाज ट्राइंग टू शेयर व्हाट आई हैव सीन। बट आई होप कि आपको ये हमारा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा लगा होगा और IIT गुवाहाटी का वर्चुअल टूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप गुवाहाटी जाए तो कैंपस को जरूर विजिट करना। हाँ, जरूर विजिट करना और नॉर्थ ईस्ट को चेरिश कीजिए। इट्स फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। चेरापूंजी, हम वहाँ पे चेरापूंजी शिलोंग भी गए थे। मैं तो बहुत शिलोंग जाती थी। हाँ, मैं
तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे जाइए, नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी को देखिए और इन्जॉय कीजिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।